Now let's discuss question number 2 of this exercise. The question is asking that write down the following decimal expansion of the following rational number and show whether they are terminating. आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपांशन बताने. देयर आर 3 क्वेश्चंस, वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ इट. आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन बताना है विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन. जो आप डिवीजन करते हो, डिवीजन नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, आपको उसका डायरेक्टली डेसिमल एक्सपांशन लिखना है. और आपको ये भी बताना है दैट these rational numbers are having a terminating डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है, वापस से रिकॉल कर लेते हैं. अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, अगर हम कहते हैं P अपॉन Q एक रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, सो दैट मीन्स दिस Q, द डिनोमिनेटर कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m एंड 5 raised to power n. इस फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है. ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो. सो व्हाट वी फर्स्ट वी गोना डू इज वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 625. डिनोमिनेटर के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो इस फॉर्म में आते हैं या नहीं आते. अगर इस फॉर्म में आते हैं देन वी विल से दैट दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नहीं आते तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. So what we're gonna do is, into the first step, this is 1 4 5 8 8 upon. Now what we're gonna do is we're gonna do the prime factorization of 625. When you will make this prime factors, you will get that 5 5 5 and 5. That means 5 will be multiplied by 4 times. 5 into 5 into 5 into 5. Just for your checking, we can do it over here. It will be go by 5. 5 ones are, then 5 twos are 10, and then 5 fives are 25. Again it will go by 5. 5 twos are 10, 5 fives are 25. Again it will go by 5. 5 fives are 25, 5 ones are 5. Sorry, 5 ones are 5. Right. Now, how many 5 are coming over here for 4 times? That is why we have written that 625 can be written as 5 into 5 into 5 into 5. This is what we have written over here. Now, after this, what we're gonna do is 1 4 5 8 8 upon 5 is coming for 4 times, so can be write as 5 raised to power 4, right? And now what we are saying that the decimal, if it is a terminating, it should be in the form of 2 raised to m and 5 raised to n. ये तो है हमारे पास में, ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे. तो कैन बी राइट लाइक दिस 1 4 5 8 8. यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 4 है. क्या हम उसे 2 raised to power 4 अगर यहाँ पे लिखें और ऊपर भी 2 raised to power 4 लिखें, क्या कुछ इक्वेशन में चेंज होंगे? डेफिनेटली नहीं. हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ में 2 raised to power 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो वी आर नॉट चेंजिंग द इक्वेशन इन एनी वे. ओके, सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज, ये 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है. सो क्या हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 4 5 8 8. 2 raised to power 4, it will be 16 upon 5 की पावर 4 है, 2 की भी पावर 4 है. कैन बी राइट लाइक दिस 5 into 2 raised to power 4. Okay, after this you will multiply this 14,588 will be multiplied by 16 and you will get the answer as 2 3 3 4 0 8. Okay, when you will multiply this 14,588 by 16, you will get this digit divided by 5 into 2, that is 10. 10 raised to power 4. After this 2 3 3 4 0 8 upon
10 raised to power 4, that means it will be 10,000. Okay, now you might know these things, that whenever the multiple of 10 is being divided, the multiple of 10 is being divided into the denominator, that number of times the decimal will be shifted to the left hand side. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट से आपका डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में. डेसिमल अभी यहाँ पर है आपका ओवर हियर, so we will shift by 4 place. So 1 2 3 4, it will be like this, 2 3 3 4 0 8. 4 जीरो से आपको डेसिमल शिफ्ट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका डेसिमल है. सो दिस इज योर आंसर. In the same way, the rest of the two questions will be also done. That is the question number 1 and question number 3. Okay. And one more thing which I want to tell you over here. After this step, we will say as the denominator is in the form of 5 raised to power m and 2 raised to power n. Hence, it is a the rational number is having a terminating decimal expansion. And after that, we will do this rest of the steps. I will give you the I will share with you a PDF in which I have solved these questions, so you can do the steps systematically. So that means the question for first and the third part of it you will solve by your own. So now let's go with the last question of this exercise, that is question number 3. Now let's talk about the last question of this exercise, question number 3. For the following decimal expansion, decide whether they are rational or not. If they are rational, write the note on prime factor of its denominator. यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये दिए गए क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिए हैं कि वो रैशनल है या इरैशनल है, रैशनल है या रैशनल नहीं है. ठीक है. एंड इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल नंबर है तब आपको उनके डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स पर एक नोट लिखनी है. बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसके अंदर. ठीक है. सबसे पहले तो आप डिसाइड करेंगे कि रैशनल है या रैशनल नहीं है. We can see over here it is non-terminating. This dot 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 is showing it's a non-terminating. ठीक है. अब रैशनल है या नहीं है वो चेक करना होगा. रैशनल नंबर के लिए क्या है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 0, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, फिर 1 2 0, अगर यहाँ पे फिर से 1 2 0 स्टार्ट हो जाता, सो वी कैन से इट्स अ रिपीटिंग. बट ऐसा नहीं हो रहा है, हर बार जीरो जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, इनफैक्ट इट्स अ इरैशनल नंबर. तो आप आंसर में क्या लिखोगे, दैट द गिवन नंबर इज अ इरैशनल नंबर. ओके. After that, these two questions, as we can see, no dot 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 is over here. That means decimal expansion जो है वो रुक गया है और यहीं पर ही खत्म हो गया. ओके. नो बार इज ऑल्सो हियर. अगर बार होता है तो बार का मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स दिस इज द फाइनल डिवीजन. जो भी डिवाइड किया गया, जिस भी नंबर से इसको डिवाइड किया गया, जो भी आपका ये फाइनल आंसर था, इसके आगे कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है. यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन रुक गया है. इट्स अ टर्मिनेटिंग. इट्स व्हाट, टर्मिनेटिंग. और क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये कैसा नंबर होगा, रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा. अब रैशनल नंबर्स के लिए क्या दिया है कि अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, तो उसके डिनोमिनेटर के आपको लिखना है नोट. कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है. अगर आप इस नंबर को देखेंगे, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे. किस तरह से, देखो क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स आर देयर. दैट मीन्स इससे आप कुछ इस तरह से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ऊपर आपने ये नंबर लिख दिया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और अब जब इसको आप डेसिमल एक्सपांशंस को जब आप इसे प्राइम फैक्टर्स करोगे सो अल्टीमेटली आपको ये 2 into 2m और 5n के फॉर्म में मिलेगा। इनफैक्ट आपको ये करना नहीं है, यू डोंट हैव टू डू, आई एम जस्ट शोइंग यू। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग नहीं है। पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो फिर उसको चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो बस उसके डिनोमिनेटर पे एक नोट लिखनी है, और नोट क्या होगी, सिंपली एज द डिनोमिनेटर, क्या लिखना होगा, एज द डिनोमिनेटर कैन बी represent in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers. मतलब जो ये पावर होगी वो कैसे होगी, वो पॉजिटिव पावर होगी, नेगेटिव पावर नहीं होगी। दैट्स इट, यही आपका बस फाइनल आंसर होगा, क्या कि रैशनल नंबर है विद द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और उसके प्राइम फैक्टर्स की जो नोट लिखनी है आपको डिनोमिनेटर की, वो बस इतना ही लिखना है, इट्स द एज द डिनोमिनेटर कैन बी represent in the form of 2 raised to power m and into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers। अब जब यहाँ पे देखोगे लास्ट क्वेश्चन को, ये बार, you can see a bar over here, this bar is showing that this particular set of number is going to be repeat again and again and again। क्या होगा कि अगर इस जो भी नंबर था, ये रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर था, इसे अगर आप और डिवाइड आगे करते जाते तो ये जो नंबर है 1 4 2 8 5 7 ये वापस रिपीट होते थे। तो ये रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और जो रिपीटिंग होते हैं उनके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। बस इतनी ही नोट आती, इस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m and 5 raised to power n। That's it. So this is how we have completed right now our chapter number 2, real number।